عوام دوست اقدامات آئی ٹی کے کاروبار تعلیم اور ٹریننگ دینے والوں کے لیے خوشخبری نگران حکومت نے ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر دی اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس 1500 سی سی سے 2000 سی سی تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 1% کمی منظور 5 ایکڑ اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں نگران حکومت کے عوام دوست اقدامات آئی ٹی کے کاروبار تعلیم اور ٹریننگ دینے والوں کے لیے خوشخبری نگران حکومت نے ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر دی اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس 1500 سی سی سے 2000 سی سی تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 1% کمی کی منظوری 5 ایکڑ اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد۔ اب آپ کو بتائیں نگراں کابینہ میں وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ایس ایم تنویر کو محکمہ توانائی اور صنعت کے ساتھ زراعت کا محکمہ میں بھی توفیق ابراہیم مراد سے بلدیات واپس لے کر لائف سٹاک ٹرانسپورٹ اور معدنیات توفیق بلال افضل سے محکمہ مواصلات اور ایکسائز کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے بلال افضل کو پی اینڈ ڈی ماحولیات اور جنگلات کے محکمے توفیق ڈاکٹر جاوید اکرم کو سوشل ویلفیئر کا محکمہ بھی توفیق کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر کو محکمہ بہبود آبادی کا اضافی محکمہ تفویض کر دیا گیا منصور قادر کو اسکول اور ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ایم پی ڈی بھی تفویض کر دیا گیا سید اسفر علی ناصر کو ہاؤسنگ اوقاف کے ساتھ زکوٰۃ و عشر کا محکمہ بھی تفویض کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں آپ کو بتائیں کہ نگراں کابینہ میں وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ہیں ایس ایم تنویر کو محکمہ توانائی اور صنعت کے ساتھ زراعت کا محکمہ بھی تفویض ابراہیم مراد سے بلدیات واپس لے کر لائف سٹاک ٹرانسپورٹ اور معدنیات اور بلال افضل سے محکمہ مواصلات اور ایکسائز کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگران کابینہ میں وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ایس ایم تنویر کو محکمہ توانائی اور صنعت کے ساتھ زراعت کا محکمہ بھی تفویض کر دیا گیا۔ پی آئی اے کا عید الاضحیٰ پر مسافروں کے لیے احسن اقدام پی آئی اے کا عید کے موقع پر اندرون ملک پر پروازوں پر رعایت کا اعلان مسافروں کو اندرون ملک پروازوں پر 10% رعایت ملیں گی یہ رعایت 30 جون سے 1 جولائی کے دوران نافذ العمل ہوگی رعایتی ٹکٹ فوری طور پر جاری کرائے جا سکتے ہیں پی آئی اے حکام نے ایسے احکامات جاری کیے ہیں۔ آپ کو بتائیں پی آئی اے کا عید الاضحیٰ پر مسافروں کے لیے احسن اقدام پی آئی اے کا عید کے موقع پر اندرون ملک پروازوں میں رعایت کا اعلان مسافروں کو اندرون ملک پروازوں پر 10% رعایت ملے گی یہ رعایت 30 جون سے 1 جولائی کے دوران نافذ العمل ہوگی رعایتی ٹکٹ فوری طور پر جاری کرائے جا سکیں گے پی آئی اے کا حکم آپ کو بتائیں کہ مسافروں کو اندرون ملک پروازوں پر 10% رعایت ملے گی۔ اب آپ کو بتائیں عید قربان میں چند روز باقی ملتان شہر کی مویشی منڈی میں گہما گہمی عروج پر حضوری باغ روڈ پر موجود پرانی بکرا منڈی میں خریداروں کا رش راجن پور ابلک اور سندھی نسل کے خوبصورت بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز جانور کی قیمت پر بیپاری اور خریداروں کے مابین بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں عید قربان میں چند روز باقی ہیں ملتان شہر کی مویشی منڈی میں گہما گہمی عروج پر حضوری باغ روڈ پر موجود پرانی بکرا منڈی میں خریداروں کا رش برقرار ہے راجن پوری ابلک اور سندھی نسل کے خوبصورت بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہو نباز سے جی اگر بات کریں ہم عید کے حوالے سے تو عید الاضحیٰ میں چند روز باقی ہیں اس وقت ہم ملتان پرانی بکر منڈی پر موجود ہیں جہاں پر جو خریدار ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ جو مہنگائی کا تناسب ہے اس نے نہ صرف ہمارے بزنس سیکٹر کو افیکٹ کیا بلکہ جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر تھا جس میں جو جانور لائف سٹاک یہ چیزیں ہیں ان کے ریٹس بھی کافی حد تک بڑھ گئے ہیں یہاں پر جو خریدار ہیں جو خریداری کرنے آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں جانتے ہیں ان سے کہ جس بھاؤ کا سوچ کر آئے تھے وہ کیا اس بھاؤ پر آپ کو یہاں پر جانور مل رہے ہیں جس بھاؤ کا جو آپ کا بجٹ تھا کہ اس بجٹ کے مطابق آپ کو یہاں چیزیں مل رہی ہیں؟ نہیں مارکیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ریٹ بڑے ہوئے ہیں درمیانی درجے کا آدمی کی پہنچ سے باہر ہے تو خریداری جو ہے وہ نہیں ہو رہی جیسے ہمارا بجٹ ہے اس حساب سے جو ہے وہ بہت کون سا جانور خریدنے آئے تھے؟ بکرا خریدنے کے لیے آئے تھے۔ بکرا خریدنے آئے تھے کتنے کلو والا؟ کوئی 30 کلو والا تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ پچھلے سال آپ نے جو خریدا تھا اس ریٹ میں اور اب کے ریٹ میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ پچھلے سال کتنے تک کا مل گیا تھا آپ کو؟
पिछले साल 16-17 में मिल गया था, अब वही जो है वो 35-36 इस रेंज में मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खरीदार हैं उनका यही कहना है जो पिछले साल हमें 20,000 तक का भी अच्छा बकरा मिल गया था, वो अब तकरीबन 40,000 तक का भी नहीं मिल रहा। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, जिस तरह से इनके रेट हाई हो गए हैं, लाइव स्टॉक के ये जो जानवर हैं आपने भी पाले हैं, कई महीने इन्हें खुराक दी होगी, काफी महंगे आपको पड़ गए होंगे, तो अब जो खरीदार है ना होने के बराबर है, तो क्या असरअंदाज पड़ रहा है इससे आपके कारोबार? महंगाई सबसे बड़ी हमारे मुल्क में, एक कैंसर से ज्यादा बीमारी बढ़ गया महंगाई। इतनी महंगाई हो गया है कि गरीब आदमी का सांस लेना हराम हो गया। अब हम लाखों रुपया लगा के बैठे हुए हैं, ऐसे मुंह उठा उठा के देख रहे हैं कि कोई गाहक आ जाए, गाहक आ जाए। गाहक अगर आते हैं तो उसकी रेंज से ज्यादा महंगी होती है। गाहक अपनी जगह मजबूर है, हम अपनी जगह मजबूर है। ट्रांसपोर्ट हो गई, दाना हो गया, घास हो गया, पट्टा हो गया, इतनी की महंगाई हो गया है ना कि एक मामूली सी मुर्गी थी वो सस्ती थी, घर में मेहमान आ जाता था, गरीब आदमी का पर्दा रखा जाता था, चलो भाई पका के खिला दो। एक 600-700 रुपए किलो तो मुर्गी हो गई है, इतनी महंगाई हो जो जानवर हैं उनके क्या रेट हैं? जो 15 किलो तक का जानवर है, 20 किलो तक का जानवर है, उसके बाद फिर बड़े जानवर की भी अगर बात करें तो क्या रेट है इस साल? और जो खरीदार है क्या उसकी कुव्वत खरीद के मुताबिक भी है, या फिर अपना वो आके बहस करके खाली घर चला जाता है? बस किसी कुव्वत खरीद से बाहर है। कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है, वो खरीद सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, वरना कोई दूसरे हम जैसे लोग आते हैं वो पसंद का तो ख्वाब घर ही छोड़ है, पसंद करते हैं तो रेट से बाहर होते हैं, अगर रेट पे आते हैं तो उनके दिल को चीज नहीं लगती। तो ये हालात हो रहे हैं, बड़ी सूरत हाल है। जानवर बेच दिया आपने? अभी तक यूं ही मैं लेटा हुआ था, आगे वो मेरा आराम खाना बना हुआ है, सुबह का मैं सोया हुआ था, ये एक बुजुर्ग है वो भी पूछ के खाली जा रहे हैं, अब मैं वो मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा हूँ, ये सूरत हाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं और शहरी जो खरीदने आए हैं जानवर, उनका यही कहना है कि जो जानवर हैं उनकी कुव्वत खरीद से अब बाहर हो चुके हैं, और जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं कि शहरी आएंगे, जानवर खरीदेंगे, मगर जो जानवर हैं वो उनकी कुव्वत खरीद से बाहर निकल चुके हैं, जानवर वो खरीद नहीं पा रहे। इसके साथ साथ जो मार्केट है उसमें जो छोटे जानवर का जो रेट है वो पिछले इस साल अगर बात की जाए तो तकरीबन दुगना वो जानवर अब बिक रहा है। बड़े जानवर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो बड़ा जानवर जो पहले 50-60 हजार का मिलता था अब वो 1 लाख से कम का मार्केट में नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया नवाज। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद रोज ही बाकी। जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में कुर्बानी के बड़े और वजनी जानवरों की आमद। मवेशी मंडी में कुर्बानी का 7 फुट लंबा 40 मन वजनी बछड़ा मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। अगर ईद के कुर्बानी के जानवरों की बात की जाए तो इस वक्त मवेशी मंडी में जो है वो कुर्बानी के जानवरों की आमद हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त मंडी में जो है वो बड़े जानवर भी मौजूद हैं। अगर इन जानवरों की कद की बात की जाए तो 7-7 फुट लंबे जो हैं वो ये जानवर हैं। अगर इनके ज़िंदा वज़न की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 35 से 40 मन जो है इनका ज़िंदा वज़न है। एक से बढ़कर एक जानवर जो है वो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। बात करने के लिए जानवरों के मालिक जो हैं वो भी हमारे मौजूद हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे गोल गोल जानवर मंडी में लेके आए हैं, क्या डिमांड करते हैं? आपका सबसे महंगा बछड़ा जो है वो इस वक्त कितने का है, और आपके पास सबसे कम बछड़ा जो है वो कितने का? इस सवाल से थोड़ा हमें बताइएगा। सबसे महंगा जी 40 लाख रुपए का। अच्छा, सबसे महंगा बछड़ा जो है वो 40 लाख रुपए का है। उसको आपने कितने अरसे में तैयार किया है? उसको क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं? 4 साल में तैयार किया है भाई। यही दूध हो गया, तेल हो गया, खल चूरी, यही खिलाते हैं। एक वक्त में कितना दूध पिलाते हैं और वो कितना पी जाता है? 5 से 7 किलो दूध पिलाते हैं। वेट के हिसाब से देखना पड़ता है कि कितना दूध पिलाना चाहिए अब इसको। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो 40 लाख रुपए का बछड़ा जो है वो तकरीबन एक भैंस का दूध जो है वो रोज़ाना पीता है। इनसे मजीद भी जानते हैं। भजन, ये बताइएगा इस वक्त मंडी में ख़रीदारों की क्या सूरत हाल है? आपके जानवरों का कोई मूल्य भी लगा है? कोई ख़रीदार आए हों जिन्होंने देखा हो और इस ख़रीदने का इजहार भी किया हो? हाँ जी, बहुत आ रहा है माशाल्लाह। ग्राहक भी आ रहे हैं, लेके भी गए हैं, काफ़ी माल बेच भी दिया है और इंशाल्लाह ये भी बिक जाएगा। बाज़ार सही है इंशाल्लाह।
आला नस्ल के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। 7-7 फुट लंबे जानवर जो हैं इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस वक्त मंडी में माल की आमद जो है वो हो चुकी है। शहरी जो है वो मंडी में कुर्बानी के जानवर खरीदो फरोख्त करने के लिए जो है वो मंडी में तशरीफ लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त जानवरों के हवाले से अगर बात की जाए तो जानवरों की कीमतें जो है। रमजान अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, बहावलपुर जहांगीरवाला रोड पर बकरा मंडी सज गई। हासिलपुरी और सिंधी नस्ल के बकरे ग्राहकों को भाने लगे। सिंधी पहलवान और हासिलपुरी बकरे की कीमत 5 लाख मुकर्रर। व्यापारी का कहना है कि 2.5 साल इन दोनों बकरों पर मेहनत की है, ऐसी जोड़ी पूरी मंडी में नहीं है। मज़ीद जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है। बकरा मंडियों में रौनकें जो हैं वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त ऐसी बकरों की जोड़ी के साथ मौजूद हूं जिनका रेट जो है वो 50 लाख जो है मुख्तस किया गया है। और इनका ये कहना है कि जो जोड़ी है ये यहाँ किसी भी ऐसी मंडी में नहीं पाई जाती। और ख़ास तौर पर अगर इनकी नस्ल की बात करें तो ये कहते हैं कि सिंधी नस्ल का और एक हासिलपुरी नस्ल का है। इनकी जो नाम है इन्होंने रखे हैं सिंधी पहलवान और सदाबहार। तो इनके मालिक भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या खास बात है इन बकरों में कि रेट आपने दोनों का 2.5 लाख और एक जोड़ी का 5 लाख रखा है। क्या खास बात है? खास बात ये है, अच्छा है, आप देखो पूरे मंडी में ऐसे बकरा नहीं है। 2.5 साल हुआ इसकी खिदमत करते हूँ और दूध छेना गंदम खिलाते हूँ। हाँ, इसलिए आप देखो इतना बकरा बड़ा पूरे मंडी में भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बकरे, इसलिए खास इतना कीमत भी नहीं है। मैंने मुनासिब कीमत बताया, इतना कीमत भी नहीं है। ठीक है, तो इनका नाम का क्या, आपने नाम किस तरह से चुने और नाम की क्या मुनासिबत? बस ये नाम इसलिए रखा हुआ है कि खुद कोई बकरा ये सिंध से लेके आया रखा हुआ है। ये पूरे बकरा जितने मेरे पास बकरा सारे से अच्छा वाला बकरा है, इसलिए इसका नाम रखा। कितना इनका वजन होगा? अगर 2.5 लाख ये 5 लाख की जोड़ी लेते हैं तो कितना इसमें से वजन निकलेगा? गोश्त इसमें 3-3 मन था है। ठीक है, हाँ, 3-3 मन का गोश्त निकलेगा। आपके सामने 3-3 मन है, उससे ऊपर भी हो सकता है। हमारे पास कंडा तो नहीं है, तोला भी नहीं, अंदाजा है 3-3 मन है इसका वजन। हाँ, कोई इसमें कमी पेशी भी कर लेंगे 5 लाख में जोड़ी अगर कोई खरीदने आए तो? वो नहीं, कमी पेशी इसमें नहीं है। बाटा रेट है इसके 4 लाख कह चुका, मैंने नहीं दिया भाई। हाँ बिल्कुल जी, 4 लाख रुपया इनका लग चुका है। और जो मालिक हैं व्यापारी, उनका कहना है कि मैंने 4 लाख में नहीं दिया, जोड़ी मैंने नाज नखरों से पाली है और 5 लाख रेट में जोड़ी फरोख्त करूंगा। सिंध पहलवान और सदाबहार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और मालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि मुंह मांगे पैसे अगर 5 लाख रुपए मिले तो दूंगा, उससे कम 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफराद की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर्स को सफाई, सरकारी वाजिबात की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। म्यूनसिपल कमेटियों के मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी को रोजाना चेक किया जाए। ईद उल अजहा के मौका पर बेहतरीन इंतजाम के लिए अलर्ट हैं। जानवरों के सेल पॉइंट्स पर व्यापारियों खरीदारों को तमाम तर सहूलियात देंगे। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफराद की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर को सफाई, सरकारी वाजिबात की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। अब आपको बताएं, चूक सरवर शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सहूलियात का फुकतान। मुस्तहिक खवातीन इमदादी रकम से महरूम। चौधरी उमर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम जो है वो ख़वातीन तक नहीं पहुँचाई जा रही। ख़वातीन की जानब से जो है वो शिकवा किया जा रहा है कि सुबह सवेरे से जो है वो लाइनों में लगकर जो है शाम को घर जो है वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो है वो रकम वो नहीं दी जा रही। इनकी जानब से शिकवा भी किया जा रहा है। गर्मी के बायस जो है यहाँ पर ना ही पानी की कोई इंतजाम आता है और इनकी जानब से जो बताया जा रहा है कि डिवाइसेस का बहाना बनाकर जो है 2-3 दिन से जो है वो रकम नहीं दी जा रही। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, शिकवा कर रही हैं। जी, क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगी? भैया दिन नेटवर्क नहीं चलती तो नहीं मिलते पैसे, बंद दिन हाले 12 बजे को बाद मिल सन बैठे रहो। दिन से चक्कर लगा रही हैं? चौथी जवाड़े डेली दे आंदे से वापस 8 महीने आदे, आज नहीं मिलते, धम्मे मिल सन। सवेरे पता कराए, सवेरे आने बाय के 8 महीने बाल नहीं मिलते, ना पानी ना कुछ, जैसा गर्मी हुस्से पैसे आप निक्के निक्के बाल घर सटे से। जी बीबी, आप क्या कहना चाहेंगी? चौथी जाड़े बाय बाय के 8 महीने सब अस अपनी ड्यूटी पूरी कराने, कुर्सियां चढ़ के बैठे, अस मासूम घर सटे निक्के निक्के बाल सारा कोई कहन।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खवातीन की बात सुनी कि सुबह से लेकर जो है शाम तक जो है वो लाइनों में लगकर जो है वो घर वापस लौट जाते हैं। 3 से 4 दिन से जो है वो चक्कर लगा रही हैं, डिवाइसेस का बहाना बना दिया जाता है और पैसे जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे। अला इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। अब आपको बताएं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का साबिक MPA सलमान नईम से राबता। पार्टी की जानिब से सलमान नईम को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। मजीद उनका क्या कहना जानेंगे जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साबका MPA से भी राब्ते का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्तान से साबिक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया। जहांगीर तरीन ने सलमान नईम से राब्ता किया और उसके बाद 2 दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी सलमान नईम से राब्ता किया गया और उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, जिस पर सलमान नईम ने जहांगीर तरीन से जो है वो सोचने का वक्त मांगा, जबकि दीगर पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने अपना जो ज़राए के मुताबिक जो है अपना वो मैसेज कन्वे किया कि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही अपनी सियासत करना चाहते हैं और आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस हवाले से सलमान ने का कहना था कि जहांगीर तरीन से उनका एक अच्छा ताल्लुक है और वो उस ताल्लुक को कायम रखना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कि वो अपनी आइंदा की सियासत जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से करें और मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ही इलेक्शन लड़ें। इस हवाले से जहांगीर तरीन के राब्ता करने के बाद जब दीगर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से सलमान नईम से राब्ता किया गया और उन्हें जहांगीर तरीन का पैगाम दोबारा पहुंचाया गया, तो सलमान नईम का कहना था कि वो जहांगीर तरीन के इस पैगाम को कदर की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि जहांगीर तरीन एक अच्छे दोस्त हैं, मगर वो अब अपना फैसला कर चुके हैं और वो मुस्लिम लीग नून से ही आइंदा की सियासत करेंगे। जबकि सलमान नईम 2018 के इलेक्शन के अंदर आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे और तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और उसके बाद जो जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, साबिक MPA पर मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में PTI के साबिक MPA सरदार आमिर नवाज खान चांदिया पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना पकालाड़ा और थाना शिदानी में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में सरकार मुदाखलत और चौर की दिफात शामिल है। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार आमिर नवाज हल्का PP 256 से रुकन मुंतखब हुए थे। मुकदमे में MPA के 3 भाइयों को भी नामजद किया गया है। मुकदमात SHO थाना शिदानी और मकामी शहरी की मदयत में दर्ज किए गए हैं। साबिक MPA पर मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में PTI के साबका MPA सरदार आमिर नवाज खान चांदिया पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात थाना पकालाड़ा और थाना शिदानी में दर्ज किए गए। मुकदमात में कार्य सरकार मुदाखलत और चोरी की दफात शामिल। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार आमिर नवाज हल्का PP 256 से रुकन मुंतखब हुए थे। मुकदमे में MPA के 3 भाइयों को भी नामजद किया गया। सूबाई सतह पर दफा 144 लगाने का इख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को दे दिया गया। अज़ला की सतह पर 7 दिन तक दफा 144 लगाने का इख्तियार DC को हासिल है। 7 रोज से जायद दफा 144 सूबे की सतह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम लगाएंगे। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोकर से। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि सूबाई सतह पर जो है दफा 144 लगाने का अख्तियार रजिस्टर्ड चीफ सेक्रेटरी होम को दिया गया है और 7 रोज से ज्यादा दफा 144 लगाने का अख्तियार भी रजिस्टर्ड चीफ सेक्रेटरी होम को दिया गया है, जबकि 7 रोज तक दफा 144 लगाने का अख्तियार पहले ही जो है वो अजला के DC के पास है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।